Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the electrochemistry. Let's start. What is reduction, what is oxidation reaction, what is redox reactions, and what is disproportionation reaction? Oxidation number को calculate किस तरह से किया जाता है? We have different rules for that. और oxidizing agents क्या होते हैं, reducing agents क्या होते हैं? These all contents we are going to cover in this video. So stay tuned with us. Start करते हैं जी from reduction and oxidation से. So the first point, oxidation. What is oxidation? बेटा word पे focus करना है oxidation के लिए. And the second term is reduction. Oxygen. Dation comes from addition. Oxidation means the addition of oxygen. The addition of oxygen. Addition of oxygen. So beta we have three different concepts जो addition और removal के लिए हैं. हम oxidation को define करेंगे on the basis of oxygen, on the basis of hydrogen, on the basis of electrons. So beta if oxygen is adding and that process is called oxidation, तो hydrogen और electrons remove होते हैं. So the removal of hydrogen is called oxidation, or the loss of electron. It means the removal of electron is called oxidation. Hydrogen और electrons का concept same रहेगा. And oxygen का concept उसके opposite है. The addition of oxygen, removal of hydrogen and electron, that is called oxidation. Oxidation and reduction, both are opposite terms. We have reduction. So beta reduction के लिए क्या होएगा? That is the opposite of oxidation. Opposite of oxidation, in which oxygen is removed, hydrogen or electrons are added. ठीक है? So the process in which oxygen is removed, the removal of oxygen is happening. तो बेटा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि रिडक्शन हो रही है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन would refer us towards reduction process. बेटा ऑक्सीडेशन में रिमूवल, यहां पे एडिशन. गॉट इट? अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड बाय यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट वी कैन इजीली फाइंड आउट कि which chemical reaction is oxidizing in a chemical reaction and which substance is reducing. So किसी भी chemical equation को अगर आपको दे दिया जाए, for example you have given this equation और आपसे कहा जाए which substance is oxidizing here, और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, विथ कहां पे रिडक्शन हो रही है और क्या प्रोसेस यहां पे ऑक्सीडेशन का हुआ है. सो वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट जो अभी बताने लगा हूं. प्लीज इस पे फोकस कीजिएगा. सो दिस पॉइंट इज अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट इज द ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर को ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं. इफ oxidation state increases, so that is called oxidation. That is called oxidation. बेटा oxidation से ये word oxidation state को relate करवा लें. If oxidation number increases, so it refers towards oxidation. If oxidation state decreases, so बेटा that is called reduction. That is called reduction.
सो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस. ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस. सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? बेटा इट इज द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम. अपेरेंट चार्ज होता है किसी भी एटम के ऊपर. इट कुड बी ओवर द मॉलिक्यूल, द अपेरेंट चार्ज ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और आयन और अ मॉलिक्यूल. बेटा उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की भी हो सकती है, मॉलिक्यूल की भी हो सकती है, कंपाउंड्स की हो सकती है, आयन्स की हो सकती है, मॉलिक्यूलर आयन्स की हो सकती है. इट इज नॉट वैलेंसी. वैलेंसी इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है, मॉलिक्यूल की वैलेंसी नहीं होती, कंपाउंड्स की वैलेंसी नहीं होती. दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. बट ऑक्सीडेशन स्टेट is for elements, is for compounds, is for ions, is for molecular ions. ठीक हो गया. So oxidation state है क्या? The apparent charge. ठीक है, apparent charge on an atom, ion, molecule or molecular ion. So that is called oxidation number. So बेटा find किस तरह से करते हैं? ये कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा एग्जाम्स में. आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. यू आर आस्क्ड टू मेंशन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर एटम इन अ कंपाउंड, या एलिमेंटल स्टेट में पूछ लिया जाए, और इन एन इक्वेशन पूछ लिया जाए, इन एन आयन पूछ लिया जाए. सो वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स. सो वी हैव डिफरेंट रूल्स फॉर दैट. बेटा फर्स्ट रूल पे फोकस करते हैं जी. फ्री स्टेट एलिमेंट्स, ऑल फ्री स्टेट एलिमेंट्स हैज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? जीरो. फ्री स्टेट एलिमेंट्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. अब फ्री स्टेट एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑल दोस मेटल्स या नॉन मेटल्स जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, दे ऑल आर फ्री स्टेट मेटल्स, फ्री स्टेट एलिमेंट्स या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. आई एम राइटिंग 2 पॉइंट्स हियर, आसानी से याद रख लेंगे. जितनी भी मेटल्स हैं, बिकॉज मेटल्स आर रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल्स इन एनी केमिकल इक्वेशन. उनके जस्ट सिंबल लिखे होते हैं अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में है. ठीक है, इफ वी आर यूजिंग एलिमेंट्स. सो मेटल्स have zero oxidation state. For example, in this equation, देखो, you can see magnesium here. Magnesium is a metal. That's why it is represented as a symbol of Mg. Its oxidation state is zero over here because it is a metal. That is free state. बेटा free state ये भी मौजूद है. We have copper. That is a metal. मेटल का जस्ट सिंबल लिखा हुआ है, तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होएगा? जीरो. फ्री स्टेट एलिमेंट्स में मेटल्स आ गई आपके पास, दे हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स. और सेकंड पॉइंट मेंशन कर रहा हूं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए. होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दे हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. So let me discuss few examples. यहाँ पे जिस तरह Mg को मैंने mention किया हुआ है, we can mention the same thing here. Metals के लिए Mg आ गया. We have zinc, we have copper, we have sodium. So beta, when we are talking about homoatomic molecules, so beta that is H2. This is homoatomic molecule. O2. O3, Cl2, P4, S8. So beta these all molecules are homoatomic molecules. इसके अलावा N2 है, we have F2, तमाम halogens हैं हमारे पास, F2, Cl2, Br2, I2. These all are homoatomic molecules. They have zero oxidation state in any chemical reaction. ठीक हो गया? They have zero oxidation state. That is our first rule. ठीक हो गया? ओके, यहां पे अगर देखो वी हैव Cl2 इन दिस इक्वेशन, तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होएगा? दैट इज
0, because Cl2 is homoatomic molecule. So we have this homoatomic molecule, its oxidation state is 0 here. Beta, many atoms or ions have fixed oxidation state. Second rule, बहुत सारे ऐसे atoms हैं, बहुत सारे ऐसे ions हैं which have fixed oxidation state. For example, if you have group 1 elements, beta group 1 के जितने भी elements हैं, they would have +1 oxidation state. We have lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Group 2 के जितने भी elements हैं, group 2 के जितने भी elements हैं, they would have +2 oxidation state. We have beryllium, then we have magnesium, calcium, strontium, barium, radium. These all elements जो group 2 के हैं, उनका oxidation state हमेशा +2 होएगा. And the next one is fluorine. Beta, fluorine always has -1 oxidation state. Now the question is कि sir halogens के लिए तो हम statement पढ़ते हैं halogens have -1 oxidation state. Halogens they have -1 oxidation state. लेकिन बेटा जो chlorine है, bromine है, iodine है, they would have different oxidation states as well. -1 तो compulsory है उनके लिए, लेकिन उसके अलावा भी different oxidation states होती हैं, ठीक है? So only fluorine from the halogens is having -1 oxidation state. इसी तरह से we have aluminium. Beta, aluminium has fixed oxidation state, that is +3, because it's a metal. Metals have positive oxidation states. और जो नॉन मेटल होती है, this fluorine is non metal, इसका oxidation state क्या है? -1. And I am referring all these oxidation states in a compound, in a molecular ion, ठीक है? Not in the free state. अगर यहाँ पे क्या है, group 1 +1 oxidation state है, many atoms or ions have fixed oxidation state in compounds, in ions, ठीक है, molecular ions में fixed oxidation state होगी. For example, group 1 की अगर आप बात करते हैं या group 2 की बात करते हैं, बेटा we have magnesium sulfate here. This is a compound. Magnesium sulfate. Magnesium belongs from the group number 2. So its oxidation state is +2 here. Its oxidation state is +2 here. Similarly, आपके पास है जी NaCl. NaCl में we have Na +1, Cl -1. So sodium belongs from the group number 1, इसलिए उसका oxidation number +1 है. ठीक हो गया? So बेटा ये कुछ पॉइंट्स और एल्यूमिनियम का आपको बताया. एल्यूमिनियम इज ऑलवेज +3. बाकी ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा. वी हैव बोरॉन एट द टॉप एंड वी नो इट्स पेक्यूलियर बिहेवियर. बोरॉन इज हैविंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज -3 ऑक्सीडेशन स्टेट. लेकिन जो ग्रुप 3 में से वी हैव एल्यूमिनियम, दैट इज प्योर मेटल. It has tendency to lose all those 3 electrons which are present in its outermost shell. So that's why it has only one oxidation state, that is +3. After removing 3 electrons जो इसके outermost shell में मौजूद हैं. So that is the second concept. जब भी ये compounds में होंगे, AlCl3 अगर compound है, तो बेटा aluminium का oxidation state +3 है. अगर just aluminium लिखा हुआ है किसी भी equation में, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. फॉर एग्जांपल इसकी जगह पे मैं अगर लिख दूं मैग्नीशियम की जगह पे Al, तो देन इट हैज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इट इज इन द फ्री स्टेट. नाउ इट इज इन द कंपाउंड स्टेट. ठीक है, कंपाउंड की फॉर्मेशन में एग्जिस्ट कर रहा है. सो इन दैट वे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ना कुछ होएगा जो हमने यहां पे मेंशन कर दिया. सो इन तमाम एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट इज फिक्स्ड. बेटा ऑक्साइड्स, जब भी आपके पास ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन O, दैट इज 2-. ये मैं बात कर रहा हूं ना ऑक्साइड की.
this oxide is normal oxide. Normal oxide. This is normal oxide. नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है. क्या चेंज भी होता है? यस, वी हैव डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन इन डिफरेंट कंपाउंड्स, इन डिफरेंट ऑक्साइड्स. फॉर एग्जांपल H2O2, ये हमारे सिलेबस में है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. हाइड्रोजन H2O फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे H2O2 प्रोड्यूस हो सकता है. H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. बेटा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होएगा? दैट इज -1 फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीजन इज -1. KO2 आपके मेटल्स के चैप्टर में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन मेंशन है. सो बेटा KO2 इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 फॉर ऑक्सीजन. सो जितने भी सुपर ऑक्साइड्स होते हैं दे हैव -1/2, हाफ, नेगेटिव 0.5 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या कभी वैलेंसी होती है हाफ में? नहीं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है. यह भी डिफरेंस है दोनों में. OF2, इस पॉइंट को एक और वे में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होएगा दैट विल कैरी द नेगेटिव चार्ज. ऑक्सीफ्लोराइड में फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट इन दैट केस वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. एंड वी नो दैट कि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो बेटा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो होएगा -1. सो ऑक्सीजन को मजबूरन प्लस में कन्वर्ट होना पड़ जाएगा. सो दैट इज सब ऑक्साइड्स. OF2 ऑक्सीफ्लोराइड्स में वी हैव सब ऑक्साइड्स, एंड सब ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस केस फ्लोरीन इज -1, तो ऑक्सीजन यहां पे है +2. दैट इज फॉर ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हमने डिस्कस किया. नॉर्मल ऑक्साइड्स में इट ऑलवेज बी नेगेटिव. आपके पास जो फिक्स्ड आयोन्स की फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कही है बेटा, वी हैव CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट ऑलवेज -2, CO3 2 नेगेटिव इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है. सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH -1, नाइट्रेट NO3 -1, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव. बेटा these all are polyatomic anions. Polyatomic anions. These are polyatomic anions. इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है. जिस तरह एटम्स का डिस्कस किया, we have these polyatomic anions which have fixed oxidation state. Carbonate -2 ही होएगा, sulfate -2, hydroxide -1, nitrate -1, phosphate that is 3 negative, sulfite SO3 2 negative होता है. So बेटा इसी तरह से we have fixed oxidation state for atoms as well as for the ions. अब यहां पे हमने हाइड्रोजन को भी डिस्कस किया. हाइड्रोजन भी बेटा हमेशा होता है +1, but when it attach with the metal hydrides, in that case metals are more electropositive. तो बेटा वो तो पॉजिटिव हो गए, हाइड्रोजन को मजबूरन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पड़ता है. सो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होता है +1, except when it is present in the metal hydrides. Except in metal hydrides. In metal hydrides. So beta metal hydrides में it has -1 oxidation state. Hydrogen has -1 oxidation state in metal hydrides. What are metal hydrides? Metals
जब हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है दैट इज कॉल्ड मेटल हाइड्राइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्राइड्स मेटल्स के साथ, बेटा NaH सोडियम के साथ अटैच है हाइड्रोजन, दैट इज मेटल हाइड्राइड। CaH2 दैट इज कैल्शियम हाइड्राइड। MgH2 दैट इज मैग्नीशियम हाइड्राइड। सो बेटा जब मेटल्स के साथ अटैच हो जाती है हाइड्रोजन, इन दैट केस हाइड्रोजन हैज टू कन्वर्ट इनटू द -1, जो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर होएगा, बिकॉज मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का भी करेक्टर है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का भी करेक्टर होता है। जिस तरह फ्लोरीन में वी ऑब्जर्व्ड कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज -1, तो ऑक्सीजन को पॉजिटिव में कन्वर्ट होना पड़ गया। हाइड्रोजन ऑलवेज +1, बट व्हेन इट अटैच विद द मेटल्स सो इसको नेगेटिव में कन्वर्ट होना पड़ गया। So beta, these are the 3 rules which we have discussed, and now moving towards the next one, sum of oxidation state of all the elements in a compound is 0. For example, आपके पास है जी H2SO4, हमारे पास है H2SO4। H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। The sum of all the oxidation states of the elements of the atoms in this molecule is 0. We have how many hydrogens? We have 2 hydrogens here. 2 hydrogens हैं। We have 1 sulfur. We have 4 oxygens. तो बेटा इसका सम किसके इक्वल होएगा? 0 के। This is the rule. तो अब इसको कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं? Hydrogen, that is always +1. It is not metal hydride. So बेटा यहाँ पे क्या होएगा? That is +1. 2 into +1. Sulfur का ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा that is +6 in this case. Oxygen is -2. So बेटा सम कर लीजिए, we'll get the 0 result. That is +2, that is +6, that is -8. तो बेटा 0 के इक्वल आ गया ना। So sum of all the oxidation states in a compound is equivalent to 0. यही रूल हम यूज करेंगे to find out the oxidation states of the elements of the atoms in a particular compound or ion. कुछ प्रैक्टिस यहाँ पे भी करते हैं हम। For example, you are given with K2Cr2O7 or KMnO4, KMnO4, और एग्जामिनर आपको कहता है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इन दिस कंपाउंड, और K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं क्रोमियम का इन दिस कंपाउंड। तो बेटा पोटेशियम इज +1. Why it is +1? Because it belongs from the group number 1. Manganese, that is X. सम करना है आपने हर एक को। We have 4 oxygens. Oxygen always -2 in compounds. सिर्फ इन ऑक्साइड्स में बेटा इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होएगा, अदरवाइज इट इज -2। सम हमेशा 0 के इक्वल होएगा। सो बेटा दैट इज X, दिस इज -8, दिस इज +1। सो X -8 +1 equals to 0. X -7 equals to 0. So बेटा X क्या आ गया? That is +7. So मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकला +7 in this compound. क्रोमियम को भी इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। K2, we have 2 potassium, so that is +2. We have 2X here. We have 7 oxygen. 7 multiplied by -2, that is -14, equivalent to 0. So बेटा 2x -14 + 2, that is 2x -12 equals to 0. तो बेटा 2x equals to +12 आ जाएगा। x किसके इक्वल आ जाएगा? That is +6. तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास निकला +6 in potassium dichromate. तो बेटा इसी तरह से we have to calculate the oxidation state here.
अब ये कुछ प्रैक्टिस फर्दर करते हैं. सल्फर दैट इज इन द फ्री स्टेट, तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होएगा? दैट इज 0. इट इज 0. Although that is used in O levels content, A levels में S8 भी यहाँ पे use कर सकते हो. FSC में the same question is given with S8 formation. S8 भी कहा जाएगा. So in that case it is also 0. ये देखें, we discussed this point. Homoatomic molecules जितने भी हैं या free state elements जितने भी होंगे, they would have 0 oxidation state. SO2 बेटा if oxygen is -2, तो ये 2 ऑक्सीजन है, so that is -4. तो सल्फर क्या हो जाएगा? In that case it is +4. सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +4, because this is -4. Sum of all the oxidation states equivalent to 0. This is -6. 3 oxygens. 3 multiplied by -2, -6. So sulfur should be +6. So यहाँ पे सल्फर क्या है? That is +6. Sulfate. Now we are talking about polyatomic anions में किसी भी एटम का आयन में से ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इस पॉइंट को हमने डिस्कस करना है. सो बेटा इन दैट केस इट इज नॉट इक्वलेंट टू 0. आयन्स का ये रूल नेक्स्ट है. आयन्स have the charge that is actually the oxidation state. तो बेटा sulfate is an ion, anything that is having any charge on it. Atom or group of atom is having some charge on it, that is called as ion. तो बेटा ions के ऊपर जो charge होता है वो उसी के equivalent होता है oxidation state उसका. So SO4 we have 1 sulfur, यहाँ पे इसको solve करते हैं. SO4 2 negative. तो बेटा we have 1 sulfur, we have 4 oxygens, that is equivalent to -2. That is equivalent to -2 जो उसका चार्ज होएगा. So sulfur plus 4 into -2 equivalent to -2. Sulfur -8 equivalent to -2. तो बेटा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया यहाँ पे? दैट इज 8 - 2 इक्वलेंट टू 6 प्लस 6. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? दैट इज +6 इन दिस कंपाउंड, इन दिस आयन. बेटा सल्फेट और H2SO4 वही आयन है और वही उसका कंपाउंड है. इस कंपाउंड में भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होएगा. इसी तरह से नाइट्रेट में नाइट्रोजन is having +5 oxidation state. Similarly HNO3 में जो उसका एसिड है नाइट्रेट का, बेटा वहां पे भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही यूज होएगा. Are you getting these points? ये रिलेशनशिप्स आपने याद रखने हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दिया जाता है? Cu2 पॉजिटिव. तो बेटा इसका चार्ज क्या है? इसका चार्ज +2 है. तो बेटा दैट इज सेम जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? दैट इज +2. Cl -1 का पूछा जाए, Cl -1 इज हैविंग -1 चार्ज ऑन इट. तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 ही है. आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स? तो अगर OH नेगेटिव का कहा जाता है -1, सो बेटा इस OH का -1 है. अगर कहा जाए हाइड्रोजन का इसमें क्या है, वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट जो SO4 2 नेगेटिव वाला रूल यूज किया है. बाय यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट वी कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन इन OH -1. सो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? वी हैव 1 ऑक्सीजन, वी हैव 1 हाइड्रोजन, इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू -1. हाइड्रोजन हमेशा होता है बेटा +1 की फॉर्म में. So oxygen +1 equals to -1. Oxygen equals to -1, that is -2. तो बेटा यहाँ पे OH में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज -2. इस तरह से हमने कैलकुलेशंस करनी होती हैं. ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस इक्वेशन. आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, एक इक्वेशन दी गई है एग्जाम में. नाउ वी आर अप्लाइंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर. दिस इज एग्जाम टाइप क्वेश्चन.
This is exam type question. Examiner will give you this equation और आपसे पूछा जाएगा कि where reduction is happening, which element is oxidizing in this equation. So बेटा जहां पे oxidation number increase होएगा that is oxidation. तो बेटा यहां पे मैग्नीशियम का oxidation number is 0. Over here it is +2. So बेटा we can say कि this is oxidation. This is ऑक्सीडेशन. और ये ऑक्सीडेशन किस में हो रही है? मैग्नीशियम में हो रही. मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइजिंग. व्हाई दिस इज ऑक्सीडाइजिंग? बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to +2. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, सो दैट्स व्हाई यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है. कॉपर इज 0 हियर. यहां पे कॉपर क्या है? दैट इज +2. रीजन कैसे पता चला? सल्फेट दैट इज 2 नेगेटिव. तो बेटा अगर ये 2 नेगेटिव है तो इट इज 2 पॉजिटिव. कॉपर सल्फेट. सो यहां से यहां पे जो कन्वर्जन हुई है दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. व्हाई दिस इज रिडक्शन? बिकॉज द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस हियर. दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. रिडक्शन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है. +2 से 0 की तरफ मूवमेंट हुई है. दैट्स व्हाई we can say कि copper is reducing here. Its oxidation number decreases from +2 to 0. So oxidation number यहाँ पे decrease होता नजर आ रहा है. So इस तरह से questions पूछे जाएंगे. Now moving towards this equation. इस equation में भी हम find out करते हैं कि कहाँ पे oxidation हुई है और कहाँ पे reduction हुई है. बेटा Cl is 0 here because it is free state element. Homoatomic molecule है. Over here we have Cl. H is +1. Cl is -1. तो बेटा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे we observe कि it decreases. तो बेटा this is called reduction. This is called reduction. Why it is reduction? Because the oxidation number decreases from 0 to -1. आगे देखते हैं जी दूसरी एग्जांपल. अगर ये Cl को ही लें और यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो बेटा ऑक्सीजन इज -2, हाइड्रोजन इज +1. सो दिस क्लोरीन शुड बी +1 ताकि पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सके. दिस इज द रूल. तो क्लोरीन को यहां पे +1 हमने मेंशन किया हुआ है. ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है. क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट इंक्रीजेस. सो बेटा दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लोरीन ही रिड्यूस हुआ है. सो व्हाट डज इट मीन? बेटा ऐसा रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ एज वेल एज रिड्यूसिंग इटसेल्फ. एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है. दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. This is also known as disproportionation reaction. This is called as disproportionation reaction. Disproportionation reaction एक और जगह पे भी आपने डिस्कस किया होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. बेटा कैनिज़ारोस रिएक्शन. कैनिज़ारोस रिएक्शन में एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट होता है. दैट रिएक्शन इज आल्सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन. तो रिडॉक्स, those reaction in which reduction and oxidation both are happening at a same time. तो बेटा वहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है लेकिन एक ही एलिमेंट पे हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन. यहां पे ऑक्सीडेशन डिफरेंट एलिमेंट्स में हो रही है और रिडक्शन
और ऑक्सीडेशन दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स की तरफ हो रही है. कॉपर इज रिड्यूसिंग हेयर, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइजिंग हेयर. सो बेटा दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर redox reactions. Although disproportionation भी redox reaction ही है, लेकिन उसको स्पेसिफाई कर दिया हमने उसकी क्लासिफिकेशन में कि दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. दिस इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन, लेकिन वो है क्योंकि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है. सो दिस इज ओनली रिडॉक्स रिएक्शंस. यहां पे मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूं जी. आपको पूछा जाए विच रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, ए बी सी डी ऑप्शन दी जा रही हैं. रिमेंबर दीज पॉइंट्स, की कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं यहां पे रिडॉक्स के लिए. दीज थ्री रिएक्शंस कैन नेवर रिडॉक्स. दीज थ्री रिएक्शंस कैन नेवर रिडॉक्स. कौन कौन से तीन रिएक्शंस है वो ऑब्जर्व कीजिए. नंबर वन neutralization reaction. NaOH plus HCl, it forms NaCl plus H2O. Neutralization reaction can never redox. It is not a redox reaction, हो ही नहीं सकता. चेक कर लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर कहीं पे चेंजिंग नहीं हो रही होगी. सेकंड, डीकंपोजिशन रिएक्शन. कैल्शियम कार्बोनेट है, ब्रेकडाउन हो गया, इट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. डीकंपोजिशन रिएक्शन कैन नेवर रिडॉक्स. रिडॉक्स हो ही नहीं सकते. थर्ड वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. When two soluble salts are mixed together, it forms one soluble and one insoluble salt. This reaction is precipitation reaction. For example, आपने बनाना है AgCl, and you are mixing AgNO3, silver nitrate plus sodium chloride. These both solutions are soluble. इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, you are getting insoluble salt. AgCl बनता है प्लस NaNO3 बनता है. बेटा दिस रिएक्शन कैन नेवर रिडॉक्स. ये तीन ऐसे रिएक्शंस याद रखिएगा जो कभी भी रिडॉक्स नहीं हो सकते. ठीक है, विच कैन नेवर रिडॉक्स. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फॉर एग्जांपल एसिड का मेटल्स के साथ रिएक्शन, इट इज ऑलवेज रिडॉक्स. एसिड का बेस के साथ रिएक्शन, इट कैन नेवर रिडॉक्स, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन है. और न्यूट्रलाइजेशन फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया. सेकंड याद रखें, एसिड का कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन. बेटा कार्बोनेट्स और एसिड का रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो वहां पे भी आपने ये पॉइंट ऑब्जर्व करना है. ठीक है, सो दीज आर द रूल्स फॉर फाइंडिंग रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है. गॉट इट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करने वाला, विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ. which oxidize others and reduce itself. Oxidize others and reduce itself. बेटा जो नॉन मेटल्स होती है ना, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. और यहां पे याद रखें, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होएगी आपके पास किनकी? नॉन मेटल्स की. सो नॉन मेटल्स आर मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स.
Non-metals are mostly oxidizing agents. For example, you have Cl2, F2, Br2, you have I2. बेटा these all are oxidizing agents, जो ऑक्सीडाइज किसी दूसरे को करते हैं और अपने आप को रिड्यूस करते हैं, अपनी रिडक्शन करते हैं, बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, तभी ये रिडक्शन करते हैं. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन. तो अपनी रिडक्शन करते हैं, किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करते हैं. सो नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर. कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, ये नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट नहीं करती. कार्बन इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फर इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बेटा ये तीन एलिमेंट्स कभी भी, तीन नॉन मेटल्स कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट नहीं करेंगे. ऑल्दो हाइड्रोजन है आपके पास H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर है S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सो आई एम जस्ट राइटिंग द सिंबल्स ऑफ दीज नॉन मेटल्स. ये कभी भी नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट नहीं करेंगी. इन तीन पॉइंट्स को याद रखिएगा प्लीज. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हमारे कंटेंट में यूज हो चुके हुए हैं. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी डिस्कस्ड KMnO4, K2Cr2O7, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. सो प्लीज रिमेंबर दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, KMnO4 एंड K2Cr2O7. KMnO4, K2Cr2O7, These are oxidizing agents. और ऑक्सीडेशन में ये हम यूज करते रहे हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी पड़ी हुई है इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ. KMnO4 एंड K2Cr2O7. रिमेंबर बेटा, जब भी कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास है Fe आयरन, इट हैज टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव. ये कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं आयरन की. तो बेटा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होएगा दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. FeCl3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो मैं यहां पे लिख देता हूं FeCl2, दैट वुड बी रिड्यूसिंग एजेंट. हमारे सिलेबस में SnCl2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में ही मेंशन किया होता है. Sn की दो वैलेंसेस +2 और +4 यूज की गई. सो SnCl4 जो है इट हैज ऑक्सीडेशन स्टेट 14+4. तो बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो इसलिए दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो बेटा इसी का जो कंपाउंड है SnCl2, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. बेटा सल्फर के ऑक्साइड्स, वी हैव सल्फर डाइऑक्साइड, वी हैव सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो इन दोनों में से बताओ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा विच हैज मोर ऑक्सीजन्स, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी होएगी SO3, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो SO2 क्या होएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. सिमिलरली आपने एसिड्स पढ़े थे, हेलो एसिड्स, HCl, HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4. जिस तरह से ऑक्सीजन इंक्रीज करता रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होएगा. रिमेंबर दिस पॉइंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जिसका होता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो बेटा HClO4 दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहां पे अगर मैं लिख दूं HClO को इसके कंपैरिजन में, तो दैट वुड बी रिड्यूसिंग एजेंट. समझ लग रही है? तो H2SO4 की अगर बात करें, बिकॉज H2SO4 कब बनेगा?
when sulfur trioxide mixed with the water, although that reaction is highly exothermic, और जब हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये रिएक्शन करवाते हैं इट प्रोड्यूसेस एसिडिक फ्यूम्स, तो हम इसको अवॉइड करते थे. सो हम इसका एक ऑल्टरनेट प्रोसीजर यूज करते थे, रिएक्शन यूज करते थे, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिक्स्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच प्रोड्यूसेस ओलियम H2S2O7 oleum, and then we diluted that oleum, that will give us sulfuric acid के 2 molecules. तो 1 मोल यूज करते थे, 2 मोल्स प्रोड्यूस हो जाते थे. सो बेटा दैट वाज कॉन्टैक्ट प्रोसेस. तो SO3 हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, इसलिए जो उसका एसिड है SO3 का एसिड है, एसिडिक रेन में भी ये रिएक्शन डिस्कस किया हुआ है, दैट हैज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आएगा. H2SO3 को आप यहां पे मेंशन कर सकते हो, H2SO3 को आप यहां पे मेंशन कर सकते हो. So what are reducing agents? Reducing agents are those species which reduce others and oxidize itself. For example, ऑक्सीडाइज करने वाले यानी कि ऑक्सीजन को गेन करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे. इट मींस रिड्यूसिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. Electron donors. If they are electron donors, it means they have electropositive elements. Reducing agents are electropositive elements. Oxidizing agents are electronegative elements. जिनकी electropositivity ज्यादा होती है, which have greater metallic character. They are reducing agents. So बेटा E donor, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स वो कौन सी होती हैं? मेटल्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं. सो कैन वी राइट मेटल्स आर reducing agents? Yes, metals are reducing agents. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कुछ reducing agents को पढ़ा है. NaBH4, that is reducing agent. LiAlH4, lithium aluminium hydride, sodium borohydride. So beta, these are reducing agents. NaBH4, we discussed lithium aluminium hydride. LiAlH4, lithium aluminium hydride. These both are reducing agents. इसके अलावा reducing agent बेटा, that is potassium iodide, hydrogen iodide. These are reducing agents. KiHi. Okay, HI से we can relate this concept with halogens. बेटा halogens are oxidizing agents. लेकिन जो उनके हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स. F2, तो HF जो होएगा दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. HCl, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. Br2 इज ऑक्सीडाइजिंग, तो HBr इज reducing agent. I2 is oxidizing agent. HI is reducing agent. जो halogens हैं, they are oxidizing. Hydrogen halides, they are reducing agents. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया, रिलेशनशिप दोनों में ऑब्जर्व कर लिया. सो इसी के साथ साथ एक की पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं. अब इस रिएक्शन में हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है. इसके लिए एक रूल बता रहा हूं. इफ यू हैव 2 रिएक्टेंट्स बट 3 प्रोडक्ट्स इन एन इक्वेशन, और आउट ऑफ दोज 3 प्रोडक्ट्स इफ वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो बेटा निग्लेक्ट दैट प्रोडक्ट for calculating the oxidizing agent and reducing agent वाला concept. तो मैं यहां से अगर वाटर को निग्लेक्ट कर दूं,
अब जरा रूल अप्लाई कीजिए, ऑक्सीजन इज जीरो, फ्री स्टेट एलिमेंट है, दिस इज M, दैट इज जीरो, मेटल यानी कि जीरो है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ऑक्सीजन इज -1, यहां पे हमने डिस्कस किया H2O2 में ऑक्सीजन इज -1, सो मेटल दैट इज 2, तो यहां पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर होएगा। क्यों +1 है? बिकॉज वी हैव 2 मेटल्स, तो ऑक्सीजन -2 होता है, ओवरऑल 0 हो जाएगा। सो बेटा ऑब्जर्व कीजिए, अब M +1 से 0 में कन्वर्ट हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, सो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन -1 से 0 में कन्वर्ट हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, ये तो हमने पहले भी किया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फाइंड आउट करना। लेकिन अगर वाटर अगर हम यूज करते तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि कहां पे ऑक्सीडेशन हुई है, कहां पे रिडक्शन हुई है। वाटर को निग्लेक्ट कर देना, ये रूल याद रखना है आपने एंटी टेस्ट के लिए। गॉट इट? एंड H2O2 में ऑक्सीजन इज एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। सो H2O2 जो कंपाउंड है, दिस इज reducing agent in this compound, in this equation H2O2 is acting like reducing agent। तो बेटा reduction जो कर रहा है that is oxidizing agent, so M2O oxidizing agent हो गया and H2O2 is reducing agent R.A, so H2O2 is reducing agent and M2O is शोइंग रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि मेटल ऑक्साइड्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कैन वी से दैट? इन दिस एग्जांपल इट इज मेंशन्ड कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक हो गया? सो मेटल ऑक्साइड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होंगे। H2O2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? -1 है। सो बेटा हमने कहा था -1 वाले मोस्टली क्या होते हैं? जो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं दे आर मोस्टली रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वैसे याद रखें H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल, और ये यहां पे इन दिस इक्वेशन इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह ही एक्ट कर रहे होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। सो इस तरह से रूल्स फर्दर उसको रिफाइन करने के लिए बताए गए हैं। आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स? सो वी डिस्कस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। So in the next video, inshallah, we'll discuss how to balance the equation by different methods. So stay tuned with us. Thank you very much.